Assalamu alaikum. You are watching ELT streaming, and this is Fawzia Said. Today, I am here with you people with the most awaited video. Why do students fail in the examination? First of all, I feel sorry that I couldn't upload the video in time as I was not feeling well. So it was pending due to some research work as well as I was collecting data from different students to know about the perspectives of failure in the eyes of students. So let's talk about uh, the term failure first. So, the purpose of this video is to understand the concept of failure and find the causes and practical solutions to get success in life and examination as well. So, what is failure? If we look at the definition of failure, it can be omission of occurrence of performance, यानी आप जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस तरह नहीं कर पाए. A state of inability to perform a normal function and you are unable to perform a normal function in a way that the others do, or lack of success. ठीक है, so it is a relative term, that is lack of success. Failure एक relative term है, यानी कि success की ना अदम मौजूदगी जो है उसको हम failure कहते हैं. So failure is the state or condition of not meeting a desirable or intended goal and viewed as the opposite of success. The criteria for failure depends on context and may be relative to a particular observer or belief system. So failure itself क्या है? ये absence of success है या lack of success है. ठीक है, जैसे कि आप अंधेरे को कहते हैं absence of light is the darkness. So same is the case. Lack of success is failure. It is a relative term. फेल होना कोई गुनाह नहीं है, पहली बात तो ये. ठीक है, एक आप सर्टेन आपका एक क्राइटेरिया है, गोल्स हैं जो आपने मीट करने हैं और उसमें अगर आप वो पहली अटेम्प्ट में या दूसरी अटेम्प्ट में नहीं कर पाते तो ये आपका जो फेलियर है ये गुनाह नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा. तो इसको आप ओपनली पहली बात तो ये कि एक्सेप्ट करें क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि लैक ऑफ सक्सेस और लैक ऑफ अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स इन अ सेट क्राइटेरिया और पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लें पहली बात. नाउ what are the common causes of failure in the examination? As I have researched different topics on the internet, so these are the points over here: poor learning or understanding, lack of interest and belief in exam malpractices, procrastination and lack of time management, and overconfidence. In this case, that you are not following the instruction of your instructor or your teacher. ठीक है, तो ये फेलियर्स की रीज़न है जो कि मुझे मिली. अब ये वीडियो डिफरेंट इसलिए है कि आई हैव टेकन the views of students about failure, what different students says. So I have taken the social media platform to take data. फेसबुक के तहत मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप को अप्रोच किया और वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन रेज किया कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्टूडेंट्स फेलियर. उसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कमेंट्स आए जो कि मैंने जो रेलेवेंट है उनमें से कुछ जो बिल्कुल आपके जो सेम बहुत सारे रिपीटेटिव थे तो वो मैंने इकट्ठे करके आपके लिए ये निकाले हैं. सो दैट इज़ द डाटा बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टूडेंट्स और देयर पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो ये इसलिए ये ऑथेंटिक डाटा हो गया क्योंकि ये आप लोगों के ओपिनियंस और व्यूज पे डिपेंड कर रहा है. So these are the students over here. They are saying that as they don't take their studies seriously. फिर वो कह रहे हैं स्टूडेंट खुद ही वजह हैं, बाकी सब एक्सक्यूजेस हैं. Some students have some problems through which they can't focus on their studies. ठीक है, उसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लोगों की फाइनेंशियल हैं, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि फेल हो जाते हैं. एंड अ पर्सन ही हैज रिटन दैट मांग तांग के असाइनमेंट्स और क्विज करते हैं जो अब खुद से आपने एफर्ट पुट करनी है वो नहीं करते, इसकी वजह से फेल होते हैं.
कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, वक्त ज़ाया करते हैं और एंड पे फिर फेलियर का सामना होता है। फिर वो कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि 15 इयर्स और पुराना जो सिलेबस है या लेक्चर्स हैं उससे तैयारी करते हैं, दैट्स वाई वो फेल हो जाते हैं या उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। फिर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, वो टाइम पे अटेम्प्ट नहीं करते, इस वजह से फेल हो जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फीस का मामला होता है, उसमें जो है स्टूडेंट्स टाइम पे जमा नहीं करवाते तो वो अपीयर नहीं हो सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रीज़न है फेल होने की, कि आप प्रॉपर टाइम नहीं देते अपनी स्टडीज़ को, और at the end when you have to appear in the examination or in any other activity, you are unable to cope up with the preparation and all। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दे आर नॉट फोकस्ड, बहुत इजी लेते हैं स्टूडेंट्स स्टडीज को और इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। घर का माहौल भी इसमें शामिल है। फिर ये अनदर कमेंट इज दैट फोकस नहीं करते। फिर आ जाता है कि डिपेंड ऑन पास्ट पेपर्स, और स्टडी के जो इजी वेज हैं उसको हम अडॉप्ट करते हैं, जो कंसेप्चुअल, स्पेशली दिस स्टडीज कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बीएस और एमएस के, उनसे ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है डिपेंड करते हैं सॉल्व फाइल्स पे, इजी गोइंग मेथड्स पे, बनी बनाई असाइनमेंट्स पे। ठीक है। अ, फिर आपकी जो क्लैरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट है वो नहीं होता, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्टेन फिजिकल जो है अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को, उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बिल्ट अप नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स की जो लैक ऑफ अटेंशन है टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, सॉरी चिल्ड्रन, उसकी वजह से फेल होते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट रोट लर्निंग, और इसकी वजह से भी फेल हो जाते हैं। तो ये भी एक किसी ने लिखा है कि रोट लर्निंग क्या हमें प्रैक्टिस नहीं होती जिन स्टूडेंट्स को, तो वो फेल हो जाते हैं। ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, और फिर उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन, मॉडर्न जो है वो डिस्ट्रक्टिव टूल्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन की जो टूल्स हैं उसमें ये आपका सोशल मीडिया है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की भी फेलियर का सबब बनती है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हाई पासिंग परसेंटेज हो जाती है और थ्रेशोल्ड इस तरह के हैं कि हम उसको कोप अप नहीं कर पाते। अ, हम स्टार्ट से ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करते। लैक ऑफ एम्बिशन होता है, टू मच प्रेशराइज होते हैं स्टूडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फ्रॉम टीचर्स एज वेल। सिलेबस का भी और शॉर्ट टर्म सेमेस्टर का प्रेशर होता है। अप्लाइंग सेम स्टैंडर्ड्स ऑन एवरीवन। ठीक है, वो कह रहे हैं जो टीचर्स हैं वो सब स्टूडेंट्स पे सेम जो है स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कुछ स्टूडेंट्स के अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर्स होते हैं या वो उनके लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम टीचर की तरफ से नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलती, ये भी रीज़न है फेलियर की। देन पुअर टीचिंग स्ट्रेटजीज, वो कह रहे हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजीज जो टीचर्स की हैं दे आर नॉट मॉडर्न एंड दे आर टीचर्स आर स्ट्रिक्ट टू लेक्चर मेथड, और उसकी वजह से वो एक सेट आपको हैंडआउट्स और वो दे देते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता एंड दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड उसकी वजह से उनका फोकस बिल्डअप नहीं होता और वो फेल हो जाते हैं। सो दीज आर द कमेंट्स विच आई हैव टेकन फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ फेलियर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको जो डाटा कलेक्ट किया रीजंस ऑफ फेलियर्स का, उसको मैंने चार्ट की शक्ल दी। तो 80% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लैक ऑफ फोकस होता है स्टूडेंट्स का अपना, वो जो इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो फेल होते हैं। 80% कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स स्टडीज को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे डू नॉट टेक सीरियस, दैट्स वाई दे मीट फेलियर। टाइम मैनेजमेंट का इशू 70% स्टूडेंट्स की नज़र में है। 60% स्टूडेंट्स आर ऑफ द व्यू के स्टूडेंट्स इजी गोइंग होते हैं और वो शॉर्टकट्स को और इनको लेते हैं और वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से वो फेल होते हैं। 50% स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी एनवायरनमेंट का रोल है इसमें, घर की भी
और जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं वहाँ पे, और जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्टर फॉर द रीजन ऑफ फेलियर। ठीक है, फिर 4.5% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी फिजिकल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो जो एक रेस है पास होने की, उसमें शामिल नहीं हो पाते। लेस इंटरेस्ट इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। Some students are of the view they have adopted or elect वो जो फील्ड अपनी चूज करते हैं दैट इज नॉट एज पर देयर इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जब हम कोई भी डिसिप्लिन, स्पेशली व्हेन वी आर इन यूनिवर्सिटी, तो हम जो भी डिसिप्लिन चूज करते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता, और हम सिर्फ डिग्री के लिए कि चलो यार ये नहीं तो ये कर लेते हैं, या डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट जो एनवायरनमेंट के तहत आप देखते हैं कि जिसका स्कोप ज़्यादा आप कर लेते हैं, बट यू आर अनएबल टू परफॉर्म इन दैट डिसिप्लिन। ठीक है, तो वो आपकी क्लैरिटी नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि आप चाहते क्या हो, और आप गलत फील्ड में घुस जाते हो, जिसकी वजह से आप या तो फेल हो जाते हो या फिर बर्न आउट होके आप वहां से उसको हमेशा के लिए स्टडीज को छोड़ देते हो। ठीक है, फिर 70% पीपल कह रहे हैं कि जी चीटिंग इज अनदर रीजन ऑफ फेलियर, कि हम चीटिंग करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज से कॉपी पेस्ट करते हैं, और उसकी वजह से हम, क्योंकि हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता, और उसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। फिर 60% स्टूडेंट्स ने कहा कि पुअर टीचिंग मेथड्स के जो पिछले बुक्स हैं, हैंडआउट्स हैं, वो बहुत पुरानी हैं, उनको अपडेट नहीं किया जाता, और टीचर्स जो हैं वो उसी पर रिलाई करते हैं, उसी से जो है असाइनमेंट्स बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनेशन के, और उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। प्रेशर जो है, उन्होंने कहा कि जी घर का प्रेशर, स्टूडेंट क्लास का प्रेशर, और आपके टाइम का प्रेशर, इसकी वजह से जो है हम फेल होते हैं। 80% स्टूडेंट्स ने कहा है कि सेल्फ आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी आप खुद ना सेल्फ डिसिप्लिन है, ना आपको मैनेजमेंट आती है टाइम की, ना आप स्टडीज को सीरियस लेते हैं, ना फोकस करते हैं, तो आप खुद जिम्मेदार हैं अपने फेलियर का। Then 60% are of the view that the economic factors are involved in the failure of students. फिर रोट लर्निंग को लोगों ने कहा कि जो कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि वो जो कॉन्सेप्चुअल लिखते हैं तो उनके नंबर कम आते हैं या वो फेल हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु स्पेंड देयर टाइम ऑन रोट लर्निंग। ठीक है, या उन्होंने ये बात की है कि जो रोट लर्निंग है उसकी वजह से 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो रट्टा लगा लेते हैं, एंड दे आर अनएबल टू हैंडल द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वो एज इट इज तो नहीं आता ना यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो ये भी एक रीजन है। 90% लोगों ने कहा कि हम एक उल्टा सीधा रट्टा लगा के वहां पे लिख देते हैं, हमें कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप नहीं होती, और उस टाइम पे इसलिए हम फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ रिसर्च, 80% लोगों ने कहा है कि स्पेशली इन द यूनिवर्सिटी लेवल, एट द यूनिवर्सिटी लेवल वी आर अनएबल टू रिसर्च, हमें रिसर्च की आदत नहीं डाली जाती, हमें वो स्पेसिफिक हैंडआउट्स और बुक्स पे रखा जाता है, जिसकी वजह से हम 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉडर्न जो है डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उस टॉपिक में या उस एरिया में, उससे अनअवेयर होते हैं और वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस टोल्ड बाय स्टूडेंट्स of failure of not meeting the criteria of success in the examination। ठीक है, अब आपने करना क्या है? पहली बात होती है कि कोई भी चीज, जो बीमारी का डायग्नोसिस है, आपको पता बीमारी है, फिर आप उसका डायग्नोसिस करके तो उसका इलाज शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स को ये माशाल्लाह से पता है, दे आर अवेयर दैट व्हाई दे आर नॉट मीटिंग द सक्सेस क्राइटेरिया। ठीक है, वो फेल क्यों हो रहे हैं, या वो जो एक क्राइटेरिया है पासिंग का वो नहीं मीट कर पा रहे। ठीक है, ये तो उन्होंने सारी रीजंस बता दी जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। अब आपने क्या करना है कि आपका जो फेल होने का रेशो है वो कम हो, या आप जो है अपनी जिंदगी में सक्सेस को अचीव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक चैलेंजेस। जो फेलियर है आपका या जो भी आपका लैक आप कर रहे हो उसको आप एज ए चैलेंज लो। ठीक है, ये मत सोचो कि जी आप फेल हो गए हो, एक स्टिग्मा लग गया है, बस अब जिंदगी खत्म है, अब मैंने खुदकुशी करनी है, खुद को कमरे में बंद कर लेना है, एंड आई एम अनएबल टू कोप अप विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ। नो,
So you have to build up your courage. You have to take that thing as a challenge. इंसान बड़े बड़े challenges लेता है तो वो आगे बढ़ता है. तो आपने failure को as a challenge लेना है. That is the first step. Then you have to plan your time well. अगर तो सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो यू हैव टू चेंज योर सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट या आपकी डिसिप्लिन जो है आप उसको बजाय इसके कि आप फेल होते रहो आप उसको चेंज करो. अपने इंटरेस्ट को अपने उसको देखो कि आप व्हाट यू वांट टू बिकम. ठीक है, आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो. इट डजेंट मैटर कि आपने एक सर्टेन आपने एमए इंग्लिश पे लग गया तो जी एमए इंग्लिश ही हमने करना है. ठीक है, उसका स्कोप है, उसको उससे हमें टीचिंग की जॉब मिल जाएगी. या जेंडर स्टडीज पे लग गया तो वही करनी है. नहीं, लोग क्या कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम सारे एमकॉम शुरू हो जाओ कॉमर्स में चले जाएंगे. या एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लें तो सबके काम आ जाएगा. नहीं, आप अपने आप को तलाश करें व्हाट यू वांट. आप अपनी कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल डेवलप करें. या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है. ठीक है, आपका इंटरेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट राइटिंग में या इस तरह की चीज में है तो यू हैव टू डेवलप योर स्केजुअल और योर टाइम लाइन एंड स्टडी लाइन इन अ वे कि आपके वो उसमें काम है. ठीक है, तो फिर आपका जब इंटरेस्ट होगा तो देन यू कैन परफॉर्म बेटर. ठीक है, फिर अपने टाइम को मैनेज करें कि आपने शुरू सेमेस्टर से अपनी एक्टिविटीज को कैसे प्लान किया और आपने उसको कैसे लेके चलना है. ठीक है, सो यू हैव टू मैनेज योर कंटेंट्स एंड टाइम. ठीक है, इतना सिलेबस मैंने इतनी देर में या इतने चैप्टर्स मैंने इतनी दिन में गो थ्रू करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं और फिर हमने उसको आगे लेके चले. रीड योर सेल्फ एंड मॉडिफाई. अपने आप को बार बार पढ़ें, देखें आप कहाँ से गलत कर रहे हैं. ठीक है, स्टडीज, एनवायरनमेंट, अखलाकियात की कमी, ये सब एक जगह पे. अपने आप को रिवाइव करें. अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है. सो यू हैव टू रीड योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड योर सेल्फ, देन रीड द सिलेबस एंड मॉडिफाई योर सेल्फ. ठीक है, अपने आप को बदलें. आप बदलेंगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी चेंज्ड. ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि मैं जो कर रहा हूँ, बिलीव इन अल्लाह who has created you in a way that you can do anything. और फिर सेल्फ बिलीव कि आई कैन डू दिस विथ फ्लाइंग कलर्स. तो आप उसको आराम से उसको उस चीज को गो थ्रू कर लेंगे बजाय इसके कि आप उसको बर्डन समझें. ठीक है, देन ऑर्गेनाइज योर रूटीन्स, योर सिलेबस, योर स्टडीज एंड प्रैक्टिस अगेन अगेन. आप ऐसे राइटिंग कर रही हैं, आपसे पहली दफा में नहीं हुआ, पेपर में फेल हो गए, मेजर उसका जो है ऐसे राइटिंग उसका पार्ट था, फेल हो गए, कोई मसला नहीं है. रिसर्च करें, ऐसे राइटिंग के पॉइंट्स ढूंढें, कुछ टॉपिक्स ढूंढे करंट, उस पर लिखना शुरू करें. शुरू में बहुत थोड़ा होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी और एट द एंड यू विल बी एबल टू राइट गुड एसेस. ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करें उस चीज की बार बार. सो यू विल गो थ्रू again and again and you will be perfect in that field. रिसर्च करें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग कंटेंट्स फॉर सोशल मीडिया, या आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, या आपकी स्टडीज का मीडिया साइंसेज है, या आप BSELT कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है क्या, उसमें रिसर्च हर रोज नए ट्रेंड्स आ रहे हैं तो वो क्या हैं, उसमें आपने देखें क्या क्या आप स्टूडेंट्स क्या कहते हैं. काइंडली लेट अस नो व्हाट टॉपिक ऑफ रिसर्च वी शुड टेक इन आवर फाइनल थीसिस. तो टीचर से या स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं. इतने सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं जिसमें वो पूछ रहे होते हैं कि जी हमें थीसिस का बता दें, हम कौन सा टॉपिक लें. नो, यू हैव टू सर्च योर फील्ड. आप किस में करना चाहते हैं, आप टीचिंग से रेलेवेंट करना चाहते हैं, आप लैंग्वेज से रेलेवेंट करना चाहते हैं, आप क्लासरूम मैनेजमेंट से रेलेवेंट करना चाहते हैं. सो वो टॉपिक आप खुद डिफाइन करें, अपना एरिया डिफाइन करें जो आपका इंटरेस्ट का है, एंड देन यू टेक योर रिसर्च. ठीक है, फिर थीसिस को प्रोसीड करें तो श्योरली यू विल गेट मोर मार्क्स. और फिर उसमें आप बार बार देखें कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे टॉपिक पे क्या क्या रिसर्च हुई है, मैं उसको अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ. देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. इतने यूट्यूब पे चैनल्स हैं, इतने फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस हैं, बट व्हाट थिंग मेक्स यू यूनिक, दैट कैरीज वेट. आपको कैसे यूनिक कर रहा है. सो
थीसिस इतने सारे, एक टॉपिक पे इतने सारी रिसर्चेज होती हैं, आपकी रिसर्च क्या है उस एरिया में, आप क्या नया कर रहे हैं, दैट मेक सेंस। ठीक है, तो अपने आप को रिवाइव करें, रिसर्च करें, मेक योर ओन नोट्स, अपने वर्ड्स में लिखें, उससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, पैराफ्रेजिंग स्किल्स है, वो बिल्ट अप होएगी। देन द कॉन्सेप्ट्स वुड बी क्लियर टू यू। जब जितना आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, और ये नहीं है कि आप सारा दिन आपने उस पर लगाना है, यू हैव टू मैनेज टाइम इन अ वे कि आप जॉब कर रहे हैं या आप हाउस वाइफ्स हैं या जो भी हैं, सो यू हैव टू take out 1 hour or 2 hour to research the topic, उसके डिफरेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, एंड देन यू हैव टू राइट योर सेल्फ। ठीक है, फिर 2 3 4 लाइनें जो भी आप लिखेंगे वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बार बार डेवलप होएगा, एंड यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट एनी असाइनमेंट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स। डेफिनेशन तो नहीं बदलती ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड एंड यू विल बी सक्सेडेड। ठीक है, आपको हो ही नहीं सकता कि टीचर आपके, इफ यू हैव रिटन द कॉन्सेप्ट यू विल गेट द पासिंग मार्क्स, फेल नहीं आप हो सकते। तो दीज आर द स्टेप्स विच आई हैव शेयर्ड फॉर यू पीपल to be more confident in your examination, and there would be more chances of success when you have self-belief in yourself, and you will have research qualities, and you make your own notes by clearing your concepts, और फिर आप अपनी स्टडीज को कैरी ऑन करते हैं, तो आप एक बेटर इंसान, माशरे में एक बेटर टीचर, एक बेटर आर्किटेक्ट, एक बेटर डिज़ाइनर बन के उभर सकते हैं। दैट्स for today. Inshallah, I'll meet you with new video. Hope you will like this video. I'm waiting for your comments and opinions. Allah Hafiz.